Hello dear students of class 11th. This video lecture is related with third unit, that is motion in a plane, and the topic which I am going to cover today is different methods to find the resultant. Dear students, in my last video lecture I shared with you what is cross product of two vectors, what is dot product of two vectors, what is cross product and dot product formula in terms of angle. Then I shared with you how we find the direction in which the cross product of two vector acts. Now this topic is also very important, dear students, because when we do the numerical, then we get vectors and we have to find where resultant of these vectors are going. For it we apply this method, that is different methods to find the resultant. To find the resultant of two vectors or more than two vectors, we have basically three methods. Number one, triangle law of vectors. Number two, parallelogram law of vectors. Number three, polygon law of vector. To find the resultant of two or more than two vectors, basically we use these laws: triangle law of vector, parallelogram law of vector and polygon law of vector. We are going to share each laws one by one. First we are discussing what is triangle law of vector. Dear students, if somewhere you get two vectors A and B like this, like this, like this, like this, like this, everywhere in each figure we have two vectors A and B, and they are asking where the resultant of these two vectors will go. Triangle law of vector states that if two vectors represent two cyclic sides of triangle, if two vectors represent two cyclic sides of the triangle, then third vector having direction opposite to them will be the result. Once again, if two vectors represent two cyclic sides of the triangle, then third vector having direction opposite to them will be the resultant. Suppose we are taking example of this one. क्या ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइक्लिक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर इस तरह से हम कंप्लीट करें, यस, दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग साइक्लिक साइड्स बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग थ्रू दिस पाथ वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये दोनों वेक्टर साइक्लिक है, तो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी जिसका डायरेक्शन इन दोनों के जस्ट अपोजिट होगा, मीन्स अगर इन दोनों वेक्टर के थ्रू हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसके थ्रू हम किधर मूव करें? क्लॉकवाइज. दैट विल बी द रिजल्टेंट. हियर ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप इन दोनों वेक्टर को पर मूव करें तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर साइक्लिक हैं. तो थर्ड वेक्टर हुज डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू देम, मीन्स जब इससे चले तो क्लॉकवाइज चले, विल बी द रिजल्टेंट. हियर
ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइक्लिक साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग थ्रू दिस पाथ वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन थर्ड वेक्टर हैविंग डायरेक्शन अपोजिट टू देम, मीन्स इस वेक्टर के थ्रू जब चले तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए. दिस विल बी द रिजल्टेंट. हियर आल्सो ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइक्लिक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के थ्रू जब हम चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं. तो थर्ड वेक्टर हैविंग डायरेक्शन अपोजिट टू देम विल बी द रिजल्टेंट. ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये दोनों वेक्टर साइक्लिक नहीं है, क्योंकि जब इस वेक्टर के थ्रू चल रहे हैं तो हम इसके अपोजिट हो जा रहे हैं, और जब इसके थ्रू चल रहे हैं तो इसके अपोजिट हो जा रहे हैं. तो दो दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल बट दे आर नॉट साइक्लिक, सो हियर वी कैन नॉट अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. सिमिलरली दीज टू वेक्टर्स may represent two sides of the triangle, but if we are moving through this vector we are opposite to it, and if we are moving through this vector we are opposite to it. So these two vectors can represent two sides of the triangle but they are not cyclic. So here also we cannot apply triangle law because they are not cyclic. Here also we are not able to apply because they are not cyclic. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमको दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करें एंड बोथ रिमेन साइक्लिक टू ईच अदर. I think triangle law vector will be clear to you. Once again I am telling the statement. If two vectors represent two adjacent sides of the triangle taken in cyclic order, then third vector or third side of the triangle will give the resultant if direction is opposite to them. This law is known as triangle law of vector. Now next is parallelogram law of vector. डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइक्लिक साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर इसके पैरेलल लाइन इतनी ही बड़ी इसी डायरेक्शन में ड्रा कर दें तो ये वेक्टर बी अगर है तो ये भी वेक्टर बी होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. और इस पॉइंट पर इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दें तो अगर ये वेक्टर अगर बी है तो ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए होगा. नाउ जो दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइक्लिक साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे वो दोनों वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Vector A or B were not representing the cyclic sides of the triangle, but now these two vectors are representing two adjacent sides of parallelogram. Then to find the resultant of them we apply parallelogram law vector, according to which if two vectors represent two adjacent sides of the parallelogram, then diagonal of the parallelogram passing through intersection point of these two vector will be the resultant. Diagonal of the parallelogram passing through intersection point of these two vector will be the resultant. This is parallelogram law vector. Dear students, these two vectors are representing two adjacent sides of triangle or not? No, because they are not cyclic. From here if we move we are going clockwise, from here we are moving it becomes anti-clockwise. So here we cannot apply triangle law vector because they are not representing cyclic sides of the triangle. But if we draw one vector here parallel to it and one vector here parallel to it,
then they can represent two adjacent sides of the parallelogram. Then to find the resultant, we apply parallelogram law vector, according to which if two vectors represent two adjacent sides of the parallelogram, then diagonal of the parallelogram passing through intersection point of them will be the resultant. Dear students, these two vectors are also not representing two cyclic sides of the triangle, but if we draw a vector parallel to it here, if this vector is B, this vector will be B, this vector is A, this vector will be A, then now these two vectors which were not representing the two cyclic sides of the triangle are representing two adjacent sides of the parallelogram. Then diagonal of the parallelogram passing through them will be the resultant. This is parallelogram law vector. तो कहने का मतलब ये है कि जब हमको दो वेक्टर्स दिए जाएंगे तो या तो वो दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की साइक्लिक साइड को रिप्रेजेंट करेंगे और या वो दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करेंगे. अगर साइक्लिक साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी अप्लाई ट्रायंगल लॉ वेक्टर टू फाइंड द रिजल्टेंट. अगर एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की तो वी विल अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर टू फाइंड द रिजल्टेंट. देन नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ वेक्टर. पॉलीगन लॉ वेक्टर तब अप्लाई किया जाता है जब नंबर ऑफ वेक्टर्स मोर देन 2 होते हैं. अगर हमारे पास वेक्टर्स मोर देन 2 हैं और हमको उनका रिजल्टेंट निकालना है देन वी अप्लाई पॉलीगन लॉ वेक्टर. सी हियर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी. वी हैव 4 वेक्टर्स. These vectors are cyclic because if we move through these vectors we are moving in anti-clockwise direction. These vectors are cyclic but they are not representing cyclic sides of the triangle, neither they are representing the adjacent sides of the parallelogram, and we want to know what is its resultant. Then we apply polygon law vector, according to which if few vectors represent adjacent sides of the polygon taken in cyclic order, then remaining side having direction opposite to them will be the resultant. अगर ये वेक्टर्स किसी पॉलीगन की एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर, तो जो साइड बचेगी और उसका डायरेक्शन इनके जस्ट अपोजिट होगा वो रिजल्टेंट होगा. ये होगा कितना, उसके लिए आप पहले इन दोनों वेक्टर को देखिए. ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइक्लिक साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर a प्लस बी. अब आप इस वेक्टर और इस वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर भी किसी ट्रायंगल की दो साइक्लिक साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट ये होगा a प्लस बी प्लस सी. अब आप इस वेक्टर और इसको देखिए, ये दोनों वेक्टर भी किसी ट्रायंगल की दो साइक्लिक साइड को रिप्रेजेंट कर, इनका रिजल्टेंट ये होगा. ये है a प्लस बी प्लस सी, ये है d, तो रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. दिस इज द पॉलीगन लॉ वेक्टर. वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर डी. ये 3-4 वेक्टर्स हैं. ये वेक्टर्स ना ही किसी ट्रायंगल की साइक्लिक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ही किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को, लेकिन ये वेक्टर किसी पॉलीगन की साइक्लिक साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ वेक्टर, इफ फ्यू वेक्टर्स रिप्रेजेंट साइक्लिक साइड्स ऑफ द पॉलीगन देन रिमेनिंग साइड हैविंग डायरेक्शन अपोजिट टू देम, इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज था तो इनका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, विल बी द रिजल्टेंट. और ये रिजल्टेंट होगा कितना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d. दिस इज द पॉलीगन लॉ वेक्टर. सो out of 3 laws it will be decided by you only after seeing the picture, after seeing the question, whether we go for triangle law vector, we go for parallelogram law vector, or we go for polygon law vector. Dear students, these laws you have to apply to find the resultant if picture is given to you.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को निकालने का एनालिटिकल मेथड क्या होता है। बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में हमने आपको बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो या तो टिप और टेल मेथड अडॉप्ट कीजिए, और टिप और टेल मेथड अगर अडॉप्ट नहीं करते हैं आप तो आपको एक मेथड और बताया जाएगा बाद में, और वो ये मेथड है जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट। टिप और टेल मेथड हम तब अडॉप्ट कर सकते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए जब हमको पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर दिया गया हो, लेकिन इस मेथड से रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको दो वेक्टर्स दिए जाएं, उनके बीच का एंगल दिया जाए तो हम ये बहुत आसानी से फॉर्मूले को यूज़ करके बता सकते हैं कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा और किधर होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक वेक्टर f1 दिया गया और दूसरा वेक्टर आपको f2 दिया गया और आपसे कहा गया इसका रिजल्टेंट बताइए। तो अगर आप टिप और टेल मेथड यूज़ करते तो पहले इसके बराबर लेंथ का वेक्टर ड्रा करते, उसके बाद ये पता करते कि f2 वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, उतने एंगल पर एक और लेंथ का वेक्टर ड्रा करते। उसके बाद आप ये कहते कि इफ़ टू वेक्टर्स आर देयर देन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस वी गेट द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होता। आप इस रिजल्टेंट की लेंथ मेज़र कर लेते, प्रोटेक्टर से एंगल मेज़र कर लेते, तो आपको पता चल जाता रिजल्टेंट कितना है और किधर है। लेकिन हम अब ना हमारे पास स्केल है, ना हमारे पास पेंसिल है, ना हमारे पास प्रोटेक्टर है। हमको एक वेक्टर दे दिया गया f1 वैल्यू का इधर, दूसरा वेक्टर f2 वैल्यू का इधर दे दिया गया, इनके बीच में एंगल दे दिया गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 कुछ भी, और हमसे क्या क्या बताइए इसका रिजल्टेंट कितना है, किधर है। तो हम करते क्या हैं, हमने आपको बताया था कि अगर किसी वेक्टर की वैल्यू आपको दी जाए तो उसका जब मॉड निकालते हो तो उसकी लेंथ मिलती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक वेक्टर f1 है तो मॉड ऑफ वेक्टर f1, जिसको केवल f1 कहेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक वेक्टर f2 है तो मॉड ऑफ वेक्टर f2, जिसको केवल f2 बोलेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। अगर ये वेक्टर रिजल्टेंट है तो मॉड ऑफ रिजल्टेंट जो r के बराबर होगा वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। तो हमको ये पता करना है ये लेंथ कितनी है और हमको ये एंगल पता करना है, लेकिन हमारे पास पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर नहीं है। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये परपेंडिकुलर है। अब आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल आपके सामने एक्स वाई जेड बना, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हाइपोटेनस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ f2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ आएगी f2 cos थीटा और ये लेंथ आएगी f2 sin थीटा। तो इन दिस ट्रायंगल वी कैन से दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू f1 प्लस f2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस f2 sin थीटा का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस में यहाँ से यहाँ तक f1 है, ये f2 cos थीटा है। इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस f2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ f2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस f2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विल बिकम f2 स्क्वायर। तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा मीन्स r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट। अगर हमको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड मालूम है और हमको उनके बीच का एंगल मालूम है तो हम इसमें पुट करके बता सकते हैं रिजल्टेंट कितना होगा। जैसे आपसे कहा जाता 4 न्यूटन का एक फोर्स इधर है, इससे 60 डिग्री पर 5 न्यूटन का एक फोर्स इधर है, तो बताइए रिजल्टेंट कितना है और किधर है। तो अगर आपके पास पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर होती तो पहले आप 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करते, यहाँ पे एरो लगाते, ये वेक्टर F1 को रिप्रेजेंट करता, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर 60 डिग्री पर 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करते, ये वेक्टर F2 रिप्रेजेंट करता, स्केल को ज्वाइन करते यहाँ से, जो स्केल की लेंथ होती है वो रिजल्टेंट मिल जाता आपको। प्रोटेक्टर को यहाँ रखते, प्रोटेक्टर जो एंगल बताता उतने एंगल पर रिजल्टेंट होता। लेकिन हमको पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर दिया नहीं गया है, हमसे कहा गया कि बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले में F1 की जगह पे 4 लिख दीजिए, F2 की जगह पर 5 लिख दीजिए, थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जो R की वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो आपको यहाँ से मिलती जब आप पेंसिल स्केल और प्रोटेक्टर को यूज़ करते। तो दिस इज़ कॉल्ड एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट। मीन्स ऐसा मेथड जिस मेथड से रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमको पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हमको केवल फॉर्मूले में पुट करके रिजल्टेंट निकाल लें। अब चलिए हमने इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके ये तो पता कर लिया कि वो रिजल्टेंट कितना होगा, ये भी तो पता करना है कि रिजल्टेंट किधर होगा, और हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है कि हम इस एंगल को पता कर पाएँ। तो फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम ये कह सकते हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब F2 साइन थीटा, बेस का मतलब F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और थीटा वैल्यू पुट करके निकाले तो आपको tan अल्फ़ा मिल जाएगा, और जब आपको tan अल्फ़ा की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, मान लो x मिलती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी tan इनवर्स x। तो आप ये भी पता कर सकते हैं बगैर पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर यूज़ किए हुए कि रिजल्टेंट किधर होगा। आप लिखेंगे कैसे? द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो it will act at an angle of alpha from first vector. It will act at an angle of alpha from first vector where alpha is tan inverse x. This is how we find the resultant using formula. So dear students, this is all about today's video lecture. I hope आपको समझ में आया होगा. If you are able to understand it, please give comment. And do like and share, subscribe, and tell your friends also to subscribe. Thank you.